Hello everyone. Last lecture, that is nothing but the topic number 14, basic principles of organic chemistry. We are already completed different types of the points. In this point, the last lecture we are completed is nothing but the nomenclature of organic compound. And in this nomenclature of organic compound, we are completed the IPC names of different types of organic compounds such as alcohol, phenol, ether, then aldehyde, ketone, carboxylic acid. Then we are completed alkane, alkene, alkyne. So different types of the functional groups such as organic compound, we are completed common names as well as IPC. In this point, we are also be completed benzene derivatives. Means what are the IPC name of benzene derivatives also. We are also be completed the alkyl groups. What are the IPC name? What are the common names of alkyl groups? Now, today's lecture, we are starting the new point in the same topic, that is topic number 14, basic principles of organic chemistry. That is nothing but the reagent. What are reagent? How they are classified? What are the types of reagent? तो ये हम लोगों को कंप्लीट करना है. तो इसमें कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट पता होने चाहिए व्हाट आर रिएजेंट. तो मैं एक इमेजिन करता हूं एक रिएक्शन. सो रिएक्शन इज नथिंग बट द A plus B. Okay, they can be formed. That is nothing but the C plus D. What is mean by A? What is mean by B? What is mean by C? And what is mean by D? तो ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, और रिएक्शन में जो भी हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट द ए. ए इज नथिंग बट द सबस्ट्रेट. इसको सबस्ट्रेट बोलते. A is nothing but the substrate. It is also be called as reactant. A is substrate or it is also be called as reactant. What is mean by B? B is nothing but the reagent. इसको बोलेंगे reagent. So B is nothing but the reagent. A is substrate. It is also be called reactant, and B is nothing but the reagent. And what are the C? What are the C? C and D is nothing but the product. इसको बोलेंगे product. So these are the product. Okay. So these are nothing but the product. So what are A? What are B? What are C? And what are D? A is substrate or reactant. B is reagent, and C plus D is called as product. Clear? तो इसमें जो रिएजेंट का पार्ट दिया है, तो आज हम लोगों को वही स्टडी करना है. व्हाट इज रिएजेंट? सो दिस रिएजेंट, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो उससे आप लोगों को कौन कौन से रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं तो वो पता चलेगा. तो फॉर एग्जांपल इज नथिंग बट द, अगर मैंने यहाँ पे इसी रिएक्शन में सेम सबस्ट्रेट भी वही है, रिएजेंट भी वही है. सबस्ट्रेट में अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज नथिंग बट द CH3Br इज नथिंग बट द मिथाइल ब्रोमाइड. That is called substrate or reactant. Reacts with or boiled with aqueous KOH. अगर ये बॉइल हो रहा है, यानी कि हम लोगों को ये जो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है, ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा. मींस मिथाइल ब्रोमाइड इज सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट boiled with aqueous KOH, that is reagent, to form a product that is nothing but the methyl alcohol and KBr. So methyl alcohol and KBr. So these are the reaction, and in this reaction, these are the substrate. Second one reagent, and third one that is nothing but the product. तो classify. ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट को हम लोगों को क्लासिफाई करना है और उसके टाइप्स लिखने. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएजेंट? तो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिएजेंट. सो दिस रिएजेंट are classified or having a two types. Which one? The electrophilic reagent, and second one nucleophilic reagent. First one electrophilic reagent, and second one nucleophilic reagent. So what is mean by electrophilic reagent? It is also be called as electrophile. Electrophilic reagent is also be called electrophile. तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए what is electrophile. So first one, okay, the first sentence is nothing but the species, उसकी definition है. The species in which are electron deficient are called electrophile. The species in which
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता हो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। बस, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट में क्लियर करने वाला हूं, तो नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? दीज आर द स्पीसीज इन विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सो दीज आर नथिंग बट द लेविस एसिड। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज लेविस एसिड, व्हाट इज, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। सो इलेक्ट्रॉन, अगर जो भी पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन और ये जो पॉइंट्स है आप लोगों को कंप्लीट हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओके, इज नथिंग बट द दे आर लेविस एसिड, ऑलवेज electrophiles are Lewis acid. What is mean by Lewis acid? Which donate lone pair of electron. Simple. Is called Lewis acid. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो डोनेट कर देता है. So during this season they are electrophile. So they are nothing but the Lewis acid. They are cation. Next point is nothing but the they are cation. What is mean by cation? So they are because positively charged species. Means जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दे बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है वो कैरीज पॉजिटिव चार्ज और कैरीज पॉजिटिव चार्ज सो इज कॉल्ड एज कैटायन. सो दीज आर नथिंग बट द कैटायन. सो इलेक्ट्रोफाइल इज कैटायन. ओके, द नेक्स्ट वन दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. तो मैंने पहले ही बोल दिया था दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो वो जो है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रीजन. सॉरी, तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजन और इलेक्ट्रोफाइल आर नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकली neutral molecule. Okay, so which incomplete octet, these are also very important. Neutral molecule which incomplete octet, these are also be called as electrophile. The next point is nothing but that they have tendency to attack इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. मींस ये किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. दे हैव टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, so they are mostly attacked to the electron rich species. Okay, so for example, so they are having a different types of the examples such as H plus, they carries positive charge. Then NO2 plus, they are also carries positive charge. Both are electron deficient species. Then BF3, they are electrically neutral molecule with incomplete octet. So these are also called as electrophile. AlCl3 is are electrically neutral molecules, and ZnCl2 is also electrically neutral molecule with incomplete octet. So these are the different types of the examples of electrophilic reagent. क्लियर? तो इससे आप लोगों को पता चलेगा. तो they have tendency means what are electrophile, what are nucleophile. So electrophilic region is also be called electrophile. The electron, first point is very important, that is electron deficient species. Second, they have positively charged species or neutral molecule with incomplete octet. Third, they are cations. Next one, they are Lewis acid. Then they are meant to attack tendency to another species, that is electron rich species. And last one, that is example. तो इसके ऊपर एक स्टेट बोर्ड को क्वेश्चन आ सकता है. Which one question? The question is nothing but the write a note on electrophilic region or electrophile. तो इससे हम लोगों को पता चलेगा what is electrophile, what is electrophilic region. तो 2 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट कर सकते. ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था रिएजेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. यहाँ पे अभी देखिए, अगर मैंने KOH लिख दिया, एक KOH है, तो ये KOH दैट इज नथिंग बट द रिएजेंट. तो इन दोनों में बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे लिखते, देखो जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं K प्लस OH माइनस.
ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं K प्लस OH. So that is K plus because they are donate electrons to electronegative species, that is more electronegative species. So they carries positive charge, they carries negative charge. So K plus is electron deficient species और OH minus is इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण दे कैरीज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और OH माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल. ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल. तो आप लोगों को पता होना चाहिए which is the electrophile and which one is the nucleophile. ठीक है. The next point, that is another type of reagent is nothing but the nucleophilic reagent. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये जो डेफिनेशन है तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ. यहाँ पे जो सेकेंड वन इज नथिंग बट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. So first one is electrophilic reagent and second one is nucleophilic reagent. It is also be called as nucleophile. Electrophilic reagent is called electrophile. तो उसी तरह से इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियो. क्लियर. तो ये तो समझ में गया. तो जो सेकेंड टाइप है इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे सब कुछ मैंने राइट करके लिखा है, तो उसमें से जो भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स है हम लोग चेंज करने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा. दीज आर द स्पीसीज इन विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन रिच. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना है. दीज आर द स्पीसीज in which are electron rich are called. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. यानी कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? द न्यूक्लियोफाइल मीन द स्पीसीज इन व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इससे पहले तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. ओके. देन नेक्स्ट वन, दे आर लेविस एसिड. तो ये लेविस एसिड का पॉइंट जो था इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का था. अभी हम लोगों को लिखना है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में, तो दे आर लेविस बेस. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होएगा, दे आर लेविस बेस. देन दे आर कैटायन. अभी देखिए यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, so they carries positive charge or negative charge, so they carries negative charge, so they are cation or anion, so they are anion. Clear. So these are called, they are anion. Next, they are positively charged or neutral molecule. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज नहीं रहेगा. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है these are called न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे they carries negative charge, so they are negatively charged. They are negatively charged or neutral molecule containing lone pair of electron. Neutral molecule containing lone pair of electron. Containing lone pair of electron. Containing lone pair of electron. So then they have tendency to attack electron rich species. नहीं है, क्योंकि ये खुद ही rich species है, electron rich species. तो ये किस पे अटैक करेगा? तो ये करेगा electron deficient species. These are electron deficient species. और लास्ट में these are the different types of the example. तो आप लोगों को इसके examples भी पता होने चाहिए. The next example is nothing but the OH minus, then Cl minus, then NH3. मुझे OH माइनस है, Cl माइनस है, NaOH है, then R bond alcohol है. These are the different types of the examples. Okay, मुझे which having a lone pair of electron. यहाँ पे lone pair of electron है, यहाँ पे lone pair of electron है. So these are the compounds is electrically neutral or neutral molecule or having lone pair of electron is nothing but the nucleophile. Or OH minus Cl minus, they carries negative charge is called as nucleophile. क्लियर. तो यहाँ पे आप लोग एक अनदर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं.
write a note on nucleophilic region. What is mean? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन और इलेक्ट्रोफाइल. सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक रीजन और न्यूक्लियोफाइल. तो हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल. तो आप लोगों को तो पता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हिच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल. Which carries negative charge, electron rich species is nothing but the nucleophile. क्लियर? तो ये आप लोगों को तो समझ में आ गया. यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, सच एज, कौन सा कंप्लीट, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इजीली इसके डिफरेंस पॉइंट लिख सकते हैं. हाउ टू राइट डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन. तो लेविस एसिड और लेविस बेस, इसके बेस पे लिख सकते हैं दे आर कैटायन और आयन, इसके बेस पे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं. सो दे आर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बेस पे लिख सकते हैं. दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और डिफरेंस, इसके ऊपर डिफरेंस लिख सकते हैं. तो बहुत सारे इस तरह से पॉइंट्स है, एग्जांपल्स है, तो हम लोग उसकी डिफरेंस पॉइंट्स से इजीली लिख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. तो समझ में आ रहा है. इस तरह से हम लोगों ने आज टुडेज लेक्चर वी आर कंप्लीटेड रीजन and types of region by using state board level questions, CET level and JEE and NEET level also. Thank you very much.